नमस्कार, वेलकम टू OPSC OS A to Z. So, Vision IAS Test Series 2023 रो टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर 40 जाए आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41. If any foreign territory becomes a part of India, then the power to specify that the people of foreign territory shall be the citizens of India is vested in. तो यार करेक्ट आंसर हम Option C, Union Government. If any foreign territory becomes a part of Government of India, specifies the person who among the people of the territory shall be the citizen of India. Such persons become the citizen of India from a notified date. जमती आम ये पुदुचेरी एग्जांपल नहीं पारिबा जोटा कि आगु फॉरेन टेरिटोरी थिला देन इंटीग्रेटेड हैला इंडियन टेरिटोरी रे. सो according to Citizenship Act 1955 सिटीजनशिप मिलला पंडिचेरी जो मैंने भी रोते से इंडिया रो. सो नेक्स्ट जा क्वेश्चन नंबर 42 को which of the following statement is or are correct regarding the article 17 जोटा को आम कहे abolition of untouchability. तर करेक्ट स्टेटमेंट ता हिसाब रे कौन फास्ट थिला it abolishes untouchability and its practice in any form. Yes, this is correct. Then untouchability has been defined under article 17. No, untouchability कोठी constitution ने हमरो define है नहीं किंतु various court judgment through रे तार मीनिंग को एक्सपांड करा है दो बट कन्स्टिट्यूशन एटा मेंशन नहीं. देन स्टेटमेंट 3 को जिबा इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट. ना इट्स अवेलेबल बोथ फॉर स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल. सो स्टेटमेंट 3 भी ये इनकरेक्ट होगा. देखो ये ओनली देजी ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट को सब बेले एलिमिनेट करेंगे. सो नेक्स्ट जा 4 को इट इज implemented by the Protection of Civil Rights Act. This is correct. 1955 Protection of Civil Rights Act through abolition of untouchability implement होता जहाँ को आर्टिकल 17 कहे. तो ये करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर 1 and 4. सो नेक्स्ट जा क्वेश्चन नंबर 43 को dark genome often seen in the news refers to first those regions of DNA of which we have minimal knowledge, minimal knowledge and whose biological function are not known much. ताको आम कहे dark genome. Those regions of DNA of which we have minimal knowledge and whose biological function are not known much ताको आम कहे डार्क जीनोम. सो ऑप्शन ए हूँ करेक्ट. तो आम एवं जमी देखाई हनी सिंह बाइपोलर डिजर्डर देखाई से ताकू नहीं ताकू बेस करके क्वेश्चन टी साइंटिस्ट मैंने डिस्कवर कर रिसेंटली दैट द codes of proteins in DNA outside our gene associated with schizophrenia and bipolar disorder that can have profound impact on the people's life. And these DNA outside the regions conventionally defined as the genes are known as dark gene. So next question number 44 को consider the following statement regarding the State Public Service Commission. तो ये कौन देला देखंतु 1/2 of the members of the commission should be persons from SC ST or OBCs. 2 रे देछि members of State Public Service Commission can be removed by the governor of the respective state. The first जो देछि 1/2 of the members of the commission should be person from SC ST. এটা completely wrong. 1/2 of the members of the commission should be such person who have held office for at least 10 years either under the government of India under the government of the state. एटा ठीक किंतु सेमते किछि SC ST स्पेसिफिक कास्ट स्पेसिफिक किछि भी मेंशन नहीं. देन देछि मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर. ना केवल से माने रिमूव हो पारिबे प्रेसिडेंट को द्वारा. स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन हो बा UPSC हो से मानकर मेंबर माने रिमूव हो पारिबे प्रेसिडेंट को द्वारा. एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रो मेंबर्स माने अपॉइंटेड होती कहा द्वारा ना गवर्नर को द्वारा. डू रिमेंबर दिस अपॉइंटेड है गवर्नर को द्वारा बट रिमूव होला बेलू केवल
प्रेसिडेंट को द्वारा ही रिमूव हो पारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर तो ये करेक्ट आंसर कौन हो गला करेक्ट आंसर ये आपंकर है डी नाइदर वन नाइदर टू तो ये दुईटा भर दुईटा जाक स्टेटमेंट ही रंग अच्छे। सो नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन और कमिटी एक्सेप्टेड द लैंग्वेज आर द क्राइटेरिया फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो ये देखो ये तीनटा जाक थिला लैंग्वेज बेस्ड किंतु ये कन्फ्यूजन हम जोटा धर कमिटी एंड जेबीपी कमिटी से मैंने लैंग्वेज बेसिस रे स्टेट फॉर्मेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट बा स्टेट फॉर्मेशन को से मैंने रिजेक्ट करथिले से मैंने एक्सेप्ट करनथिले किंतु फैजल अली कमिशन जे कि लैंग्वेज बेसिस रे ब्रॉडली एक्सेप्टेड द लैंग्वेज आर द क्राइटेरिया फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। सो किंतु एटा आउ गोटे ये इम्पोर्टाट जिन मन रखा किंतु फैजल अली कमिशन एटा रिजेक्ट करथिले कि वन लैंग्वेज एंड वन लैंग्वेज स्टेट पॉलिसीटा को से रिजेक्ट करथिले किंतु लैंग्वेज बेसिस रे स्टेट फॉर्मेशन को एक्सेप्टेंस देथिले। सो 45 रो आंसर हम 3 ओनली। सो नेक्स्ट जीवा सो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। So next question number 46 consider the following statement chairperson of the National Human Rights Commission and State Human Rights Commission are appointed by the President of India। तो ये आम देखा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन एंड स्टेट देखो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन चेयरपर्सन प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंटेड हुंती एटा करेक्ट अच्छी किंतु देची स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन ना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन अपॉइंट क्या द्वारा हुंती अपॉइंटेड बाय द गवर्नर लाइक योर स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन जमती गवर्नर को द्वारा अपॉइंटेड हुंती सेमती स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन रे चेयरपर्सन अपॉइंट हुंती बाय गवर्नर। सो ऑप्शन 1 ये इनकरेक्ट होगा तो 2 को जीवा ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन यहीटा आपंकर आंसर ठीक अच्छी। तो 46 रो आंसर हो बी 2 ओनली। सो नेक्स्ट जीवा 47 को द रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सैटिस्फाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशन इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर अंडर आर्टिकल 26 groups of individual with a system of belief this is right, a group with common organization this is also right, collective has a distinctive name this is also right, the group has a religious text of its own ना सेमती किसी मैंडेट नहीं। देन 5 रे देचे द लीडर हु प्रीचेस ए डिस्टिंक्ट डॉक्ट्रिन सेमती भी किसी मेंशन नहीं। सो 1 2 एंड 3 तीनटा जाक करेक्ट अच्छी। सो ऑप्शन ए ये आपंकर राइट आंसर। सो 47 ऑप्शन ए। नेक्स्ट जीवा 48 क्वेश्चन को 48 क्वेश्चन देची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज or are the fundamental duties under the part 4A of the Constitution of India to develop scientific temper and humanism yes this is right। 2 रे देला to encourage the participation of worker in the management of industries एटा DPSP अंडर आछे एटा fundamental duties अंडर आसुनी। so this is incorrect। तापर to pay taxes सेमिति किछि fundamental duties रे मेंशन नाही। So the taxes should be included in the fundamental duties but it was not accepted को एटा किए कहिथिले एटा स्वरण सिंह कमिटी कहिथिले बट एटा के एक्सेप्ट कराई नथिला। सो एटा भी एटी इनकरेक्ट हेला टू कास्ट वोट एटा भी फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर रे आसु फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर रे आसुनी। सो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ओनली 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 which of the following elements form a part of basic structure of the constitution as laid down by various court judgments। तो कोटा basic structure part जाउची secular character of the constitution yes it's comes under basic structure of the constitution। then कौन देला separation of power between the legislature and executive this also comes under basic structure of the constitution। then socialist socialist state के आसुनी socialist state is doesn't come under basic structure of the constitution। then principle of reasonableness yes this comes under basic structure of the
कन्स्टिट्यूशन सो ये करेक्ट आंसर हो 1 2 एंड 4 तो देखो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला थ्रू 1973 आसी बेस्ड ऑन वेरियस जजमेंट ऑफ द कोर्ट द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर लाइक आपणकर secular character of the constitution, sovereign democratic and republic nature, then separation of power between the legislature, judiciary and executive, unity and integrity of the nation, welfare state, rule of law and parliamentary system, effective access to justice, principle of reasonableness, ये सब आसुची बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट स्टेट कथा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आसुनी सो ये राइट आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 50 को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉमन टू बोथ इंटरेस्ट ग्रुप एंड पीपल्स मूवमेंट तो ये देला बोथ अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज विदाउट डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इन द इलेक्टोरल कंपटीशन सो यहाँ ठीक अच्छे से मैंने इलेक्टोरल कंपटीशन पार्टिसिपेट करती देन जी बोथ हैव ए लूज ऑर्गेनाइजेशन वेयर डिसीजन मेकिंग इज इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल देखो इंटरेस्ट ग्रुप जहाँ आम प्रेशर ग्रुप कहे सेटा लूज ऑर्गेनाइजेशन नुहे किंतु आम जिते जोटा मूवमेंट कथा पीपल्स मूवमेंट कहे दिस इज ए लूज एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट दे दीजिए बिकॉज ये बोथ लिखाई बोथ आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन no this is also incorrect so option A is the right answer here only one so thank you एटी आम क्वेश्चन नंबर 50 जाए कवर कर गले नेक्स्ट क्वेश्चन आम ट्राए करवा 2 ରୁ 3टा वीडियो कवर करने थैंक यू।